Hello friends, how are you all? Today we are going to start the actual communication topic. And the title of this chapter is Fundamentals of Communication. Look at this small image. What do you see and what do you read? Can you guess who these two persons are? Yes, they are husband and wife. The husband says to wife, "In the moonlight, your teeth look just like pearls." Pearl माने मोती. माने हस्बैंड अपनी वाइफ की तारीफ कर रहा है, उसको कह रहा है कि चंद्र के प्रकाश में तुम्हारे दांत बिल्कुल मोतियों की तरह चमक रहे हैं. Now let me tell you one more thing, that pearl can also be a name of a girl. So the wife misunderstands and shouts at the husband by saying, "Who's Pearl? And what were you doing in the moonlight with her?" This is a very good example of miscommunication. Husband is referring to the teeth of his wife by saying that they look like pearls. And on the other side, the wife probably she didn't either hear the message properly, or she could not understand it properly, so she just heard pearl and she thought it might be the name of a girlfriend of her husband. So she gets angry and shouts at her husband saying that, "Who is this Pearl? And what were you doing with her in the moonlight?" Okay, I'll give you a few more examples. What I said is not what you heard. This happens many a times. Hasn't it ever happened with you? When you wanted to say something to somebody and the other person understood something else? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप एक चीज बताना चाहते थे और सामने वाला बंदा कुछ और समझा? इसे हम कहते हैं मिसकम्युनिकेशन, जहां पे हम एक चीज कहने की कोशिश कर रहे हैं और सामने वाला उसको समझने की बजाय कुछ और समझ रहा है. व्हाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? इसके कई सारे कारण हैं. जैसे एक बेसिक रीजन ये हो सकता है कि बोलने वाले बंदे ने कुछ गड़बड़ कर दी, उसे जो कहना था वो अच्छी तरीके से कह नहीं पाया, तो सामने वाले ने कुछ उल्टा समझा. कई बार ऐसा भी होता है ना कि बोलने वाला ठीक से बोला, पर सामने वाले बंदे को सुनने में या समझने में कुछ गड़बड़ हो गई, तो उसने कुछ और समझ लिया. अब इसमें होता क्या है ना कि जब भी कोई बंदा किसी इंपॉर्टेंट चीज को बताता है, तो वो चीज बताने के पीछे उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, और वो चाहता है कि सामने वाला मेरी बात को ठीक से समझे और मेरा पर्पस अचीव हो. You might expect the other person to take some action after you have communicated your message. Only if he or she understands your message in the right sense, he or she will take the desired action and your purpose would be achieved. अब यहाँ पे क्या हुआ कि बोलने वाले ने जो बोला, सामने वाले ने कुछ उल्टा अर्थ निकाला, और बोलने वाला जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो चीज उसने नहीं किया, सामने वाले ने वो चीज नहीं किया. तो पूरा ये जो हमने मेहनत किया, कम्युनिकेशन किया, हमने मैसेज दिया, उसका जो पर्पस था वो सॉल्व ही नहीं हुआ. दिस हैपेंस विथ अस ऑलमोस्ट एवरी डे, whether we are chatting with our friends or we are talking with our parents or grandparents, whether we are dealing with our teachers, neighbors or anybody else. If you are a working person, this happens with you every day in office, while dealing with a colleague or a subordinate or a superior. Let's eat, grandma. मतलब a grandson is telling his grandmother, let us eat. पोता अपनी दादी को खाने के लिए बुला रहा है कि दादी माँ चलिए खाना खा लेते हैं.
So this was the original message which grandson wanted to communicate to his grandma. But in a hurry, what happened? He probably miscommunicated that, or probably grandma could not understand it properly. So the message actually went like this: let's eat grandma. इसका मतलब हुआ कि चलो मिलकर ग्रैंडमा को खा जाते हैं. सी द डिफरेंस. पहला जो मैसेज है वो सही मैसेज है, जहां पे पोता अपनी दादी को बोल रहा है कि दादी माँ चलिए हम साथ मिलके खाना खाते हैं. अब दूसरा मैसेज अगर आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा अजीब लगे, बहुत ही अजीब लगेगा, क्योंकि यहां पे ऐसा लग रहा है कि जैसे पोता और लोगों से बोला कि चलो सब मिलते हैं और ये दादी को ही खा जाते हैं. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिसकम्युनिकेशन. और एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूंगा. कई बार ये होता है ना, जैसे बारिश से पहले हर एक शहर की जो कॉरपोरेशन अथॉरिटी होती है वो कुछ प्री मॉनसून एक्टिविटी लेके चलती है, और जैसे रास्ते पर सारा काम शुरू हो जाता है, डिगिंग वर्क, खड्डे खोद दिए जाते हैं जिसमें फिर बारिश आने पर पानी भर जाता है और मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ जाती है. तो कुछ हफ्ते पहले मैं जा रहा था, कहीं पे रोड पे रिपेयरिंग चल रहा था, वहां पे एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा हुआ था और उस पे मैंने ये पढ़ा: गो स्लो, वर्क इन प्रोग्रेस. इसका मतलब ये हुआ कि लिखने वाले ने ये लिखना चाहा था, गो स्लो माने धीरे जाइए, धीरे से अपनी गाड़ी चलाइए, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस, काम चल रहा है. अब कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये मैसेज को इस तरह से पढ़ा: गो स्लो वर्क इन प्रोग्रेस. उन्होंने ये पढ़ा कि भागिए, जाइए, मत रुकिए. क्यों? यहां पे तो सब धीरे धीरे काम कर रहे हैं, यहां पे तो एकदम धीरे से काम चल रहा है, आप अपना वक्त क्यों वेस्ट कर रहे हो? डोंट वेस्ट योर टाइम, यू कीप गोइंग, दिस पीपल आर वेरी स्लो वर्कर्स. देखिए एकदम उल्टा मैसेज हो गया. और एक देखते हैं. अब जो भी बंदे ने ये मैसेज कहना चाहा था, वो उसका कहने का मतलब ये था: वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग. माने औरत, उसके बिना, माने औरत के बिना पुरुष का कोई महत्व नहीं है. माने इस सेंटेंस में महिलाओं का महत्व बताया गया था और पुरुषों का कम महत्व दिखाया गया था, कि किसी भी औरत के बिना पुरुष का कोई महत्व नहीं. माने स्त्री के बिना, पत्नी के बिना पुरुष का कोई महत्व नहीं है, पति का कोई महत्व नहीं है. अब किसी भाई साहब ने इसको ऐसे पढ़ लिया, पूरा अर्थ ही चेंज हो गया. उन्होंने पढ़ा: वुमन विदाउट हर मैन, औरत अपने पति के बिना, स्त्री अपने पति के बिना, पत्नी अपने पति के बिना इज नथिंग, कुछ भी नहीं. देखिए पूरा मीनिंग ही उल्टा हो गया. जो ओरिजिनल मैसेज था वो स्त्रियों का महत्व बता रहा था. अब ये जो मैसेज है इसमें पुरुषों को हाईलाइट किया गया है कि भैया पति के बिना स्त्री की कोई वैल्यू नहीं है, स्त्री का कोई महत्व नहीं है. ये जो सारे एग्जाम्पल हमने देखे, लेट्स ईट ग्रैंडमा, गो स्लो, वर्क इन प्रोग्रेस, वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिसकम्युनिकेशन. क्योंकि ये हर एक एग्जाम्पल में ओरिजिनल मैसेज कुछ और था, बोलने वाला या लिखने वाला बंदा कुछ और कहना चाह रहा था, और जो एक्चुअली मैसेज सामने वाले को मिला या सामने वाले ने समझा वो बिल्कुल अलग था. इस तरह के मिसकम्युनिकेशन रोजाना होते हैं, हमारी लाइफ में होते रहते हैं. दिक्कत ये आती है ना कि जब हम कहीं पे कोई रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले कर रहे होते हैं, हम कहीं पे काम कर रहे होते हैं, वहां पे इस तरह के मिसकम्युनिकेशन होने से हमारा इंप्रेशन डाउन हो जाता है, हमारे डिपार्टमेंट का, हमारी कंपनी का इंप्रेशन डाउन हो जाता है, और सामने वाला बंदा हमको अंडर एस्टिमेट करता है कि ये बंदे को कुछ आता नहीं है, ये बंदा स्मार्ट नहीं है. और जब ये चीज बढ़ जाती है ना तो बंदे का कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. So we need to learn this art and skill of communicating with others. एक और बढ़िया सा एग्जांपल देना चाहूंगा जो कि यूजुअली कंपनीज में कई बार होता है.
इसको गौर से देखिएगा। सबसे पहला जो चित्र है वो आपको बताए कि हाउ द कस्टमर एक्सप्लेन इट। मैंने कस्टमर ने किसी कंपनी को किसी प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर दिया, तो कस्टमर ने जो डिस्क्रिप्शन दिया, कस्टमर ने जो मैसेज दिया वो ये था, वो ऐसा कुछ चाहता था। आप देख सकते हैं Yes, well, एक we're back पेड़ finally. की So this is टहनी यानी Carlos. डाली के ऊपर hold on a second. Can you, yeah. What's going on, guys? Casual Savage here, and in this video, I'm going to how the project leader understood it। अब जो कस्टमर ने बोला वो पहले का showing चित्र you आपको दिख रहा है, उसके बिल्कुल is बगल में no जो चित्र है quality वो दिखा रहा है loss. कि Now I will be प्रोजेक्ट showing you. जिसकी टीम Download को it ये from. जिम्मेदारी If you दी already गई have थी कि Handbrake, ये you can कस्टमर skip भाई साहब ने forward to जो the ऑर्डर time दिया shown उस on हिसाब से screen आपको now. बनाना Handbrake है। is 100% वो free. टीम का I've जो used it for लीडर था many, उसने क्या many years, and समझा, this उसने is ऐसे their समझा website. कि It is एक super. नहीं दो प्लेटफॉर्म पे Once you open up Handbrake, डिजाइन बनाने को बोला। this is what it will look like. It is a very, very basic layout. Now, the first thing you want to do is select open source. Then, if you're going to have a file or a folder full of files that you want to reduce in file sizes, then you would select the top one. If you have a single video, simply select open a single video file. So I'm going to be using this footage right here, and as you can see, it has 3.20 gigabytes and it's 28-minute footage in MP4. I'm going to double click it. Here you have previews of what's going on. I will blur it out simply because this is a client's video and I probably don't have permission to actually show you what's happening in the video. However, I'll leave it at this one. So that just gives you a little preview of what's happening in the video. Now where it says presets, this is going to be the main thing. So mine is actually exported in 1080 and at 30 frames per second. If you want to reduce the file size even more, then I do recommend using 7. अब ये सारे प्रोजेक्ट का जो डॉक्यूमेंटेशन और जो फाइल में जो रिकॉर्ड में दिखाया गया वो ये था। नीचे देखिए एकदम लेफ्ट साइड वाला चित्र, हाउ द प्रोजेक्ट वाज डॉक्यूमेंटेड। एक्चुअल इंस्टॉलेशन क्या किया ऑपरेशन वालों ने, आप देख सकते हैं पेड़ की टहनी के ऊपर सिर्फ एक रस्सी झूल रही है। कस्टमर को जो बिल भेजा गया कि भैया हमने आपके ऑर्डर से प्रोडक्ट बनाए, उसका बिल देखिए रोलर कोस्टर वाला, मतलब किया कुछ नहीं और बिल लगा दिया 10 गुना ज्यादा। सपोर्ट देखिए, हेल्प डेस्क ने सपोर्ट क्या किया जब कस्टमर ने फोन किया, तो बिल्कुल कटा हुआ पेड़। और कस्टमर को एक्चुअली किस चीज का जरूरत था आप देख सकते हो, कुछ नहीं, एक सीधा सा एकदम बेसिक सा जैसे गांव में बच्चे खेलते उस तरह सा झूला उसको चाहिए था कि पेड़ की टहनी के ऊपर एक रस्सी बंधी है और उसके नीचे एक टायर लगा हुआ है जिसमें बैठ के वो झूला खा सकता है। वो उसका नीड था, वो उसका रिक्वायरमेंट था। अब गलती हुई कस्टमर से। द वर्ड कम्युनिकेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस which means to share. Latin was an old language, it is not in existence now. Latin बहुत पुरानी भाषा थी, पहले के जमाने में बहुत ये भाषा का उपयोग होता था, बोलने वाले लोग थे। अभी लेटिन भाषा के जानकार शायद कोई नहीं है, अभी ये भाषा का प्रैक्टिकली हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो लेटिन भाषा में एक शब्द हुआ करता था जिसको बोला जाता था कम्युनिस, कम्युनिकेट्स वेल। सो दे कनेक्ट speaking with communicating. That is not true. Speaking is just a one way process, जहां पे बोलने वाले का एकमात्र फोकस रहता है उसके मैसेज के ऊपर, उसे जो बोलना है उसके ऊपर। सामने कोई बंदा हो भी सकता है सुनने वाला या न भी हो सकता है। The sole purpose of the speaker is just to convey his message, and he is not at all concerned whether his message reaches the other person or not, whether the other person understands his message or not. He is least concerned about that. His only focus is to create a good impression. जैसे आप देखते हैं कई सारे नेता हैं जो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया बोलते, बहुत ही इंप्रेसिव बोलते हैं, पर उनमें से काफी सारे ऐसे हैं कि वो जो बोलते हैं वो शायद उन्हीं को पता होता है, सुनने वाले के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तो ये स्पीकिंग हो सकता है।
तो स्पीकिंग में क्या होता है ना कि बंदा उसको जो बोलना है उसके ऊपर उसका ध्यान रहता है और वो कोशिश करता है कि मैं जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बोलने का प्रयास करूं और सामने वाले बंदे को कोई है तो उसके ऊपर भी अच्छा इंप्रेशन बने। So what is talking? Talking is a bit different. Here there are at least two persons, a sender and a receiver, a speaker and a listener. And here the purpose of both of them is to share or exchange ideas, information, or feelings with each other. So their purpose is to share whatever they know, to share whatever they have. It's a mutual interaction. It's a two-way process. So talking is a two-way process. But again, here nobody is seriously concerned about whether the other person understands his or her message properly or not. Because their only focus is to share or exchange. So talking may be an entertainment kind of activity from this perspective. Now we'll have a look at the communication. How does communication differ from speaking and talking? The first difference between speaking and communicating is that when you speak, it's a one-way process. You keep on speaking, whether there may be a listener or not. But when you communicate, there are at least two persons, and communication is a two-way process, just like talking, with one difference. What is the difference between talking and communicating? When you talk, your only focus is to convey or share information with the other person, and his concern is the same. In communication, we have a higher purpose. When we communicate, we have a specific purpose in our mind and that we want to achieve. That purpose can be anything. It can be to inform, to educate, to convince, to entertain, or anything else. But when we communicate something, we want to make sure that whatever we try to convey, the same message is understood by the other person. So in this manner, communication differs from talking. जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम जो कहना चाहते हैं उस चीज को हम इतनी अच्छी तरह से पेश करें ताकि सामने वाला बंदा वो ही समझे जो हम कहना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो दिस इज कम्युनिकेशन। चाहते हैं, हम जो समझाना चाहते हैं बिल्कुल वही चीज अगर सामने वाला समझा तो हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन हुआ। Unfortunately, it doesn't happen every time. That's why we need good communicators. That's why organizations are looking for the employees who are good communicators. If I say one thing, you understand the other thing, you tell it to someone else, he understands something else, he tells it to someone else, and that someone else understands something else. You know what is going to happen? We will not be able to give you the right feedback. जब आप सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो तो क्या हो रहा है कि आप जो कहना चाहते हो सामने वाला कुछ उल्टा समझ लेता है, और जब सामने वाले को कंफ्यूजन होता है, वो कुछ उल्टा समझता है, तो वो चीज करता है जो आप नहीं चाहते हो। एक सीधा सा उदाहरण है, अ मदर tells his son to visit the market, the vegetable market, and fetch some potatoes. The son goes to market and brings tomatoes. This is a simple example of miscommunication. माँ ने बोला बेटा आलू लेके आ,
बेटा जाके टमाटर लेके आया, मिसकम्युनिकेशन हो गया. So this increases the responsibility on the part of the speaker or the sender. He has to ensure, he has to confirm whether the other person has understood properly or not. And if he feels that there is some confusion, he should sort it out, he should get it clear. So when we communicate, our major aim is to create an understanding in the mind of the receiver. जब हम कम्युनिकेशन करते तो हमारा सबसे बड़ा पर्पस ये होता है कि हम जो कहना चाहते हैं बिल्कुल वही चीज सामने वाला समझे. कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं कम्युनिकेशन के. जैसे when a small baby cries due to hunger, घर में अगर छोटा बच्चा है उसको भूख लगती है तो छोटा बच्चा, उसको तो बोलना नहीं आता, वो क्या करेगा? He or she will cry. So the small baby is unable to convey his or her feelings with the help of words. वो बोल नहीं सकती या बोल नहीं सकता, उसको सिर्फ रोना आता है, तो वो रोएगा या रोएगी? अब उसके रोने से mother will know that baby has got hungry, so she'll immediately come to the baby and feed her. मां को पता चल जाएगा कि बच्चे को भूख लगी है, तो आके उसको खाना देगी. One more example. Lot of people have got dogs as their pets in home. So many a times it happens that a stranger passes by your home and the dog starts barking. So a dog can also not speak. It can only bark. But that sound of barking tells the owner, tells the master that a stranger has come. So कुत्ता जो भौंकता है वो भौंक कर अपने मालिक को कम्युनिकेट करता है, बताता है कि कोई अनजान बंदा यहां से गुजर रहा है या कोई अनजान बंदा यहां पे आया है. क्या कोई इनएनिमेटेड चीज भी कम्युनिकेट करती है? हाँ. When you stop your bike or car at a traffic junction because there is a red signal, the red signal is communicating to you stop. So this is again an example of communication. A very simple example can be a teacher teaching a particular subject or a particular topic to the students. जब कोई शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो भी कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि टीचर तो ये चाहता है कि वो जो समझ रहा है, उसे जो पता है, बिल्कुल वही चीज बच्चे समझ पाए. वो कोशिश करेगा. अब कुछ बच्चों को वही चीज समझ में आएगी, कुछ बच्चे कुछ उल्टा पुल्टा समझेंगे. इट्स क्वाइट पॉसिबल. कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा. So what is business communication now? कम्युनिकेशन के बाद आइए हम देखते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है. कम्युनिकेशन which is used for different business activities is called business communication. किसी भी कंपनी में काम करने वाला बंदा कंपनी के काम से दूसरे व्यक्ति के साथ जो कोई भी मैसेज शेयर करता है उसे हम कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन. कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा. अ मैनेजर ब्रीफिंग हिज सबऑर्डिनेट्स अबाउट एन अपकमिंग प्रोजेक्ट. कंपनी को कुछ नया ऑर्डर मिला है, कोई नया काम मिला है और कंपनी ने वो नए काम की जिम्मेदारी किसी मैनेजर को दी है. अब 2-3 दिन में शायद वो काम हमें शुरू करना है, तो मैनेजर क्या करेगा, अपने पूरे ही टीम मेंबर्स को बुलाएगा और उनको ब्रीफ करेगा. ब्रीफ करेगा माने उनको इंफॉर्मेशन देगा कि हमें कौन सा काम करना है, कब शुरू करना है, वो किस तरह का काम है, उसमें आप में से किसको क्या रोल प्ले करना होगा,
कितने अरसे का वो प्रोजेक्ट होगा, ये सारी ब्रीफिंग, ये सारी इंफॉर्मेशन अ मैनेजर हैज टू गिव टू हिज टीम मेंबर्स. So because it is happening within an organization, because there is a purpose which is associated with the organization, this is an example of business communication. One more. A boss instructing her secretary to take the notes during a meeting. This is an example of business communication. जैसे मीटिंग शुरू होने वाली है और मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस होने वाली है, तो बॉस चाहती है कि उसकी जो सेक्रेटरी है वो मीटिंग में उपस्थित रहे और मीटिंग के अंदर जो कोई भी डिस्कशन हो, जो कोई भी डिसीजंस लिए जाएंगे, उसको वो नोट करे. सो जब वो अपने सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शन दे रही है कि वी आर सून गोइंग टू स्टार्ट अ मीटिंग, आई वांट यू टू रिमेन प्रेजेंट इन द मीटिंग and please ensure that you note down every important discussion that we have and every major decision that we make. So this is an example of business communication. एक और, a salesperson trying to persuade a prospective customer to buy a product. कोई बंदा है, he is working as a salesperson in an organization and the company is manufacturing a particular product. As a part of his job, the salesperson visits a prospective customer. Prospective माने संभावित, possible, because he has not, the person has not bought the product yet. So he is known as a future, a possible prospective customer. So when the salesperson visits that customer, gives him the demonstration of the product, ask him couple of questions, answers the questions of the customer and tries to convince him that the product is of good quality and it is going to give him the desired benefits. He is trying to persuade the customer to buy that product. He doesn't do it for himself only, he does it for his organization. So this is again an example of business communication. Due to this COVID-19 pandemic, lot of people have been suffering, including the business people. So when a group of businessmen discussing effects of lockdown on their business, it is again an example of business communication. They may not belong to one common organization, but they all are in their individual, they all have their own businesses, and whatever topic they are discussing upon is also affecting their business. So this is also an example of business communication. And finally, a boss sharing his feedback to the subordinate during appraisal. Performance appraisal is a yearly meeting between an employee and his immediate boss, in which the boss shares his observation and feedback about the performance of that employee throughout the year. उसने क्या काम किया, उसके टारगेट्स क्या थे, उसमें से कौन सा काम उसने अच्छा किया, कहाँ पे उससे गलतियां हुई, क्या क्या अच्छी चीजें उसने सीखी, कौन सी नई चीजें सीखी, कौन सी चीजें अभी उसको सीखना बाकी है. ये सारा फीडबैक बॉस अपने एम्प्लॉय को देता है ड्यूरिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल. उसके बिना पर डिसीजन लिया जाता है कि वो एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट मिलेगा नए साल में या नहीं, उसका प्रमोशन होगा या नहीं. एंड द बॉस ऑल्सो गाइड्स हिम फॉर द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. बॉस उसको ये भी समझाता है कि उसको क्या नया सीखने का जरूरत है, कौन सा नया नॉलेज, कौन सी नई स्किल्स उसको इंप्रूव करने की जरूरत है, ताकि अगले अप्रेजल तक वो आगे बढ़ पाए. So a boss is sharing his opinions and suggestions in terms of feedback. This is also an example of a business communication. Now business communication has got certain features. Features माने खासियत है. आइए उसके बारे में जानते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन की क्या खासियतें हैं. So the very first feature of business communication is it's a two-way process. What do we mean by two-way process?
See, in any communication process, there are at least two persons. One who conveys the message, he is known as sender, and the other one who receives the message, he is known as the receiver. कम्युनिकेशन में कम से कम दो लोग होते हैं, एक जो मैसेज देता है जिसे हम कहेंगे सेंडर, और दूसरा जो मैसेज लेता है, मैसेज प्राप्त करता है, जिसे हम कहेंगे रिसीवर. अब व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन कम्युनिकेशन, एक बंदा बोलता रहता है और दूसरा बंदा सुनता रहता है? नहीं, ऐसा नहीं होता. दैट इज अ वन वे प्रोसेस. कम्युनिकेशन में क्या होता है ना, इट्स अ टू वे प्रोसेस, क्योंकि उसमें दोनों ही बंदे पार्टिसिपेट करते हैं. एक सीधा सा एग्जांपल दूंगा. मान लो मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूं, आपसे मिलके मैं आपको कहूंगा हेलो आई एम हेमांग, ठीक है, मतलब मैंने अपना नाम बताया. अब आप क्या करोगे? बस खड़े रहोगे. आप भी हंस के अपना नाम बताओ, जैसे हेलो आई एम राहुल, ठीक है. तो क्या हुआ यहाँ पे, मैंने आपको हाय कहा और अपना नाम बताया, हाय आई एम हेमांग. आप चुप नहीं रहे, आपने भी स्माइल करके मुझे हेलो कहा और अपना नाम बताया कि हेलो आई एम राहुल. सो मतलब मैंने भी आपको कुछ मैसेज दिया, आपने भी मुझे कुछ मैसेज दिया. सो दिस इज अ टू वे प्रोसेस. सो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, जहां पे दोनों ही लोग एक दूसरे से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन या आइडिया एक्सचेंज करते हैं. इट डजंट हैपन दैट ओनली वन पर्सन स्पीक्स और राइट्स, बोथ द पर्सन पार्टिसिपेट्स. सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट टू वे प्रोसेस. बिजनेस कम्युनिकेशन का एक और भी फीचर है जिसे हम कहेंगे इट्स एन ऑन प्रोसेस. यही एग्जाम्पल को हम लेके चलते हैं. ऑन गोइंग माने कंटिन्यूअस प्रोसेस. अब कंटिन्यूटी कितनी रहती है ना, दैट डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट एंड द गोल्स ऑफ सेंडर एंड रिसीवर एंड द सिचुएशन. पर ये मेरा और राहुल का एक इंटरेक्शन, उसकी बात करते हैं. जैसे मैंने राहुल से कहा हाय आई एम हेमांग, एंड राहुल इमीडिएटली रिप्लाई हेलो हेमांग आई एम राहुल. This is called completion of one cycle of communication. कम्युनिकेशन का एक चक्कर खत्म हुआ, एक चक्र खत्म हुआ. मैंने कुछ बोला, सामने वाले ने मुझे रिप्लाई दिया, एक साइकिल खत्म हुआ. अब नॉर्मली यहां पे कम्युनिकेशन का दी एंड नहीं होता. कम्युनिकेशन इससे आगे भी बढ़ता है. जैसे मैं राहुल से पूछूंगा राहुल हाउ आर यू, राहुल विल से आई एम फाइन हाउ आर यू. Now I will say I am also good. देखिए मतलब दूसरी साइकिल हो गई. मैंने राहुल से पूछा राहुल तुम कैसे हो, राहुल ने कहा मैं मजे में हूं, आप कैसे हो. मैंने बोला मैं भी मजे में हूं. Now राहुल में ask a question, सर यहां पे कैसे आना हुआ, and I might answer like this कि बस यहां से निकल रहा था, याद आ गया कि राहुल यहीं पे है तो चलो मिल लिया जाए. See, did you notice that we did not stop with hi and hello. The cycle kept on moving further and further. Now it depends upon the situation, the urgency and the goals of sender as well as the receiver, how long this cycles continue. परिस्थिति और सेंडर और रिसीवर दोनों ही के इंटरेस्ट और गोल के ऊपर निर्भर करता है कि ये कम्युनिकेशन कब तक चलेगा. हो सकता है वो यहां पे रुक जाए, हो सकता है कुछ और बढ़े. सो कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इट डजंट मीन दैट यू ओनली कम्युनिकेट विद वन पर्सन कंटिन्यूअसली. यू मे कम्युनिकेट विद अ नंबर ऑफ पीपल थ्रू आउट द डे, whether you are at home or whether you are inside your workplace, whether you are somewhere out, you meet someone, you start talking with that person. कुछ नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे. सो वन थिंग इज सर्टेन दैट कम्युनिकेशन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस. क्या कभी आपने ऐसे बंदे को देखा है जो मुंह में पट्टी लगा के घूमते हो? हाँ, अभी देखने को मिल रहा है, पर वो पट्टी नहीं, वो मास्क है और वो पहनना पड़ रहा है क्योंकि अभी कोविड वायरस जो है वो वहीं पे है, तो गया नहीं है. तो उससे बचने के लिए हम लोग मास्क लगा के घूमते हैं.
किसी और के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ, it keeps on happening. So we can say that communication is an ongoing process. कम्युनिकेशन की एक तीसरी भी खासियत है कि it is not communicating only facts, माने information, but it also communicate ideas and emotions as well. हम लोग बैठे हैं, अचानक से एक दोस्त बोलता है चलिए मूवी देखने चलते हैं. So this was nothing but an idea which pop up in his mind and he said चलो मूवी देखने चलते हैं. Emotions. दो लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, अब पीछे से कोई नॉटी लड़का आता है और एक को सर पे मार के चला जाता है फटाम. अब ये बंदा गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा भाई. He'll display his anger in a number of ways. He may slap that person who played a prank. He may shout at that person. There may be a lot of verbal fight among them. So we also communicate our emotions. आपको कुछ चाहिए और आपको पता है पिताजी थोड़े स्ट्रिक्ट पर, मम्मी बहुत ही सॉफ्ट है. यू गो टू योर मॉम और जाके बोलते हो मम्मा 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 मुझे ये काम है आपसे, मुझे ये लाके दो ना प्लीज. Now that is again you are conveying your emotions to your mother. It's actually emotional blackmailing, but emotions are there. Crying, laughing, these are also emotions. We don't only communicate ideas or information, we also communicate our emotions. किसी को देख के आपको कुछ फील हुआ, आपने किसी को बोले no I feel this about her, I feel this about him. You're sharing your emotions. कई बार घर पे एंटर होने के टाइम पे घर का जो माहौल है वो देख के, पिताजी या माताजी को देख के भी आपको पता चलता है कि भाई कुछ ना कुछ महाभारत का युद्ध छिड़ा है, मुझे बहुत संभल के रहना पड़ेगा. And we don't communicate the same thing always. We communicate different things to different people in different manner. So this makes communication a dynamic process. The same person talking softly with his boss in the morning, you might see him shouting at a colleague or a subordinate in the afternoon. That talks about the dynamic nature of communication. So communication is never same. It keeps on changing. It keeps on occurring at a different time, in different situations, at different places, among different people, and different manners. So that's why we call communication a dynamic process. Communication किसी एक तरह से नहीं होता और कोई एक बंदा हमेशा एक ही बंदे के साथ एक ही तरह से कम्युनिकेशन भी नहीं करता. अगर आप सुबह में अपने बॉस के साथ ऑफिस में अच्छी तरह से रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हो, यस बॉस कर रहे हो, तो दोपहर में हो सकता है कि आप अपने सबऑर्डिनेट से चिल्ला के बात कर रहे हो, उस पर आप गुस्सा हो गए हो. सो कम्युनिकेशन का डायनामिज्म यहाँ पे पता चल रहा है. जिस तरीके से आप किसी एक बंदे से अभी बात कर रहे हो सकता है उसी बंदे से कल आप किसी और तरीके से बात करो. और टॉपिक भी तो अलग होंगे ना, कि मान लो आज आपने किसी एक टॉपिक के ऊपर बात किया, कल आप किसी दूसरे टॉपिक पे बात कर रहे हो. आज आप पेमेंट देने की बात करो, कल आप पेमेंट मांग भी सकते हो ना. सो कम्युनिकेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस. And the fifth feature of business communication is that it's a goal-oriented process. Now, what do we mean by goal-oriented process? See, ideally there are two persons in a communication process. The person who begins the communication process, who is known as sender, and the person who receives the message, the receiver. Each of them has got a particular goal. And to accomplish that goal, they are participating into this process called communication. हमने देखा कि कम्युनिकेशन कम से कम दो लोगों के बीच में होती है. जो बंदा कम्युनिकेशन शुरू करता है उसे हम कहते हैं सेंडर. जो बंदा कम्युनिकेशन या मैसेज रिसीव करता है उसे हम कहते हैं रिसीवर.
और ये दोनों ही बंदे वहां पे हैं क्योंकि दोनों ही बंदों का कोई ना कोई पर्पस है, कोई ना कोई गोल है जिसे अचीव करने के लिए वो लोग वहां पे हैं। एक सीधा सा एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए मैं सीएस करने वाले बच्चों को बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, तो मेरा गोल है उनको वो सब्जेक्ट अच्छी तरह से पढ़ाना, और उसी वक्त उनका भी एक गोल है कि बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को मेरे साथ अच्छी तरह से सीखना। तो मेरा गोल है पढ़ाना, उनका गोल है पढ़ना, मतलब हम दोनों के गोल मैच हो रहे हैं। और when the goals of sender and receiver match, it may result into effective or successful communication. But say for example, if my goal is to teach you and your goal is to have fun, our communication may not become successful. Or maybe your goal is to study, to learn, and if I am not in the mood to teach you, then also communication will not happen. So communication is a goal oriented process, and both sender and receiver try to achieve their individual goals. And finally, communication is an interdisciplinary science. Communication is science. Why do we call it interdisciplinary? Because see, when you talk about communication, it also includes study from different fields, different areas such as psychology, anthropology, sociology, and political science as well. What is psychology? Psychology is study of attitude, perceptions, and persuasion. Communication involves all these elements. What is anthropology? Anthropology is a study of human society, culture, and its development. Who does communication? It's we humans do communication. So again, humans are involved. So some aspect of anthropology is included. And sociology is nothing but study about the society. We as the member of society communicate with other members of society. So sociology is also a part of communication. So this makes communication an interdisciplinary science. So we have just referred to different features of business communication. It's a two-way process because both the persons, sender as well as receiver, participate. If sender says something, the receiver tries to reply. It's an ongoing process. Cycle one after the other keeps on occurring. Use of facts as well as ideas and emotions. Dynamism. It keeps on changing at a different time, in different situations, at different place, among different people. Both sender and receiver carry a goal, and each of them tries to achieve his or her goals. And communication is a combination of different disciplines. Now we'll talk about the importance of communication. Communication का महत्व. So the first factor that tells us about importance of communication is growth in the size of organizations. See, suppose you make a decision to start a business today. You may look for a place and you may start a small office, which is a rented office. Even after 5 years, will you be at the same place in the same small size rented office? See, when you start a business, you have limited source of income, you have limited finance. So it may happen that you, as the owner of the business, play multiple roles. You are the boss, you are the manager, you are the director, and you are the peon also. And it's still a small company having office in a small place. It's a rented office. What is the future? Say after 5 years, you may have two offices, and in each office there is at least a staff of 15 or 20. Your business has grown.
What after 10 years? Now you may have branches across Gujarat. Say you may have your head office in Baroda, you may have branches in Ahmedabad, Surat, Naryad, and other cities. After 20 years, you go international. Now you have your offices, your branches in different countries. You may have your office in Dubai, you may have your office in Germany, you may have your office in New York. So you started with just one person, that was you. Now it is not only you. Now there are thousands of people working in your company at different places in different countries. So tell me one thing, is it necessary to keep on exchanging information with all of them on a daily basis? Yes. If you can't do that, your business will not survive. So in order to ensure that your business runs successfully, you need to communicate with all these people on a regular basis. Every head office needs to keep a communication channel open with the branch offices. You should be able to know what is happening where, so that even if there is a problem at a particular place, you are there to help them sort it out. Right? So it is necessary to keep in touch with all the people, all the employees, to ensure that you function in a smooth manner and you grow vertically, you grow positively. It can only happen if you communicate with them. So communication mushkil hai. See, in a one small office where there are only 5 persons working with you, it's very easy to communicate. Anytime you can call anybody and talk with them. Anytime you can go to the desk and talk with them. You can simply call and have a word with them. बट एक में से जब 2 ऑफिस होती है, 2 में से 4, 4 में से 40, 40 में से 100 ऑफिस होती है, तो सबके साथ कम्युनिकेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है. पर इंपॉर्टेंस तो बढ़ता रहता है ना. कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा, वरना पता कैसे चल के कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे किस बंदे को क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे काम रुक गया है और उसकी वजह क्या है. काफी सारे लोग हैं आपकी कंपनी में जिनको आपका गाइडेंस चाहिए, जिनको आपसे मोटिवेशन चाहिए. ये सारी चीजें कब होगी? ये सारी चीजें तभी हो सकती है जब आप उनके साथ कम्युनिकेट करें. सो कम्युनिकेशन करना मुश्किल हो रहा है, पर उसके साथ साथ उसका महत्व बढ़ रहा है, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन किए हम अपने बिजनेस के गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे. सो दिस ग्रोथ इन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, छोटी में से बड़ी, बड़ी में से और बड़ी कंपनी जब बनती है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है, बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन होता है, और सर एक प्रोडक्ट में से 10 प्रोडक्ट बनना शुरू होती है, नए नए बिजनेस आप कैप्चर करते हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है, मुश्किलें बढ़ती हैं, चैलेंजेस बढ़ती है, और कम्युनिकेशन भी बढ़ता है. So this is a prominent reason that shows us why communication has become important across the world among the organizations. अब दूसरा कारण देखते हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन का महत्व बढ़ चुका है. That is growing specialization. Friends, this is an era of specialization. कुछ दिन पहले मुझे एक भाई साहब मिले जिनको कान के ऊपर एक पट्टी लगी हुई थी. ऐसा लग रहा था कि उनको कुछ वहां पे कुछ ऑपरेशन वगैरह किया गया है. मैंने उनसे बात किया, उन्होंने बताया कि जाने दो, बहुत दिक्कत हो रही थी, कान में पेन हो रहा था. सो आई वेंट टू एन ईएनटी स्पेशलिस्ट. ईएनटी स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट. उन्होंने देखा और बोला, भैया ये तो बड़ा ही जटिल प्रॉब्लम है आपको, इसके लिए आपका सर्जरी करना पड़ेगा. तो भाई साहब ने बोला कि मैंने डॉक्टर को बोला कि ठीक है, कर मेरा सर्जरी कर दीजिए, आप कब आऊं? डॉक्टर ने बोला, अरे नहीं नहीं नहीं, इसका सर्जरी मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है वो आपके राइट ईयर में, मैं तो लेफ्ट ईयर का स्पेशलिस्ट हूं. फनी लग रहा है ना? Friends, we are in an era where it's not only specialization, now is an era of super specialization. So this was just fun, but you may come across such super specialists now. आंख की बात देख लीजिए, मोती बिंदु,
जिसको हम गुजराती में मोतियो कहिए से, इंग्लिश में कैटरेक्ट कहते हैं, वो बड़ी आम समस्या है आंख से जुड़ी हुई। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमें मोतीबिंब होता है, जिसको उनका सर्जरी करके आपका विजन आपको वापस लाके देता है। सो अभी जो जमाना है वो सुपर स्पेशलाइजेशन का है। कंपनीज में भी अभी ये चीज चल रही है। कंपनी ये कोशिश करे कि हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक कार्य के लिए, हर एक रोल के लिए एक स्पेशल बंदा हो, जिसके पास वो कार्य से रिलेटेड सारा नॉलेज हो और वो कार्य को अच्छी तरह से करने के सारी स्किल्स भी हो। So companies are also trying to hire specialist people in their organizations. So when you have a number of specialist people working in your organization, your responsibility increases, because then you have to ensure that there is an ongoing communication among them. See, you might have lot of specialist people in your production department, and you may also have a lot of specialist people in your sales department. But then there has to be a regular communication between these two departments and the people working in each department. For some reason, if the production target increases, then it needs to be communicated with the sales department so that they can also change their target and they can plan accordingly. अब मान लो there is no communication between production department and sales department, कितना बड़ा लफड़ा होगा। प्रोडक्शन वालों का टारगेट बढ़ गया, माने 5,000 की जगह उनको 10,000 प्रोडक्ट बनाने का ऑर्डर दे दिया गया। अब ये चीज का इंफॉर्मेशन सेल्स वालों को नहीं मिला। सेल्स वाला 5,000 नंबर को दिमाग में रख के चल रहा है, उस हिसाब से उसने प्लानिंग किया है, और जो भी एक्स्ट्रा सेल्स पर्सन है इनको छुट्टी दे के रखी है। अब उसको एकदम से पता लगता है कि भाई इस महीने 5,000 नहीं, कंपनी तो 10,000 प्रोडक्ट बनाने वाली है, तो उसका तो बैंड बच जाएगा कि उसने ऑलरेडी 3 सेल्समैन को छुट्टी दे रखी है। सबकी छुट्टी कैंसिल करवा कर उसे उनको वापस बुलाना पड़ेगा, नए सिरे से सबके टारगेट सेट करने पड़ेंगे, नए सिरे से सबको एक्स्ट्रा काम देके ओवर टाइम करवा के भी काम करवा के टारगेट अचीव करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज देयर वाज अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब काम के ऊपर तो इसका असर नहीं होना चाहिए, कंपनी के टारगेट तो नहीं हिलने चाहिए ना, वो तो अचीव करना ही है। सो यू नीड टू एंश्योर दैट you have a smooth flow of communication among the specialists, because see, we need to have a mutual cooperation and understanding between departments and specialist people. Only with effective communication this can be achieved. और भी एक कारण है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन का महत्व बढ़ गया है, and that is cut throat competition. कंपटीशन उसकी चरम सीमा पर है। इतने सारे लोग एक ही तरह के बिजनेस में है कि बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब मान लो मैंने आज बिजनेस शुरू किया, मेरे पास 5 कस्टमर है, क्या ऐसा कोई गारंटी है कि 5 साल बाद भी मेरे पास वो 5 कस्टमर होंगे? नहीं। कस्टमर बढ़ते हैं, कस्टमर कम भी होते हैं। हो सकता है कि मैंने आज बिजनेस शुरू किया 5 कस्टमर के साथ, एक हफ्ते बाद मेरे बगल में किसी और ने वही बिजनेस शुरू किया और मेरे 5 में से 2 कस्टमर वो ले गया। क्वाइट पॉसिबल। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस टू होल्ड the existing customers and to get new customers. And to get a customer, you need to communicate on a regular basis in a positive manner, in a convincing manner. किसी भी कंपनी के सामने आज 2 चैलेंजेस है। एक तो क्या किया जाए ताकि हमारे पुराने जो कस्टमर है वो हमारे पास ही रहे, किसी और कंपनी उसको ले ना जाए, और क्या किया जाए जिससे हम और नए कस्टमर्स को हमारी प्रोडक्ट खरीदने के लिए कन्विंस कर पाए या हमारी सर्विस यूज करने के लिए मना पाए। सो ओल्ड कस्टमर्स, हाउ टू रिटेन देम, एंड न्यू कस्टमर्स, हाउ टू ग्रैब देम, हाउ टू गेट देम, आर द 2 टिपिकल चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन नाउअडेज। और अगर आपको पुराने कस्टमर को टिका के रखना है, मेंटेन करना है और नए कस्टमर्स को लाना है,
So what you need is to have a wonderful communication with the customers. You may have two types of customers, existing and future. To ensure that to retain the existing customers, you need to constantly communicate with them ताकि किसी और कंपनी उसको ले ना जाए. And to bring new customers, you again need to communicate with them too, so that they come to you. Advertising, publicity, relationship, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है. And through each of these things, you need to communicate. So कंपटीशन में टिकने के लिए, सरवाइव करने के लिए, कंपटीशन में ग्रो होने के लिए हमको कम्युनिकेशन करना पड़ रहा है. कम्युनिकेशन का महत्व बहुत बढ़ गया है. एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ रहा है, क्योंकि एग्जिस्टिंग कस्टमर ही ऐसा बंदे कि जो अगर चाहता है, जो अगर सेटिस्फाइड है, तो और 10 कस्टमर लाके देगा आपको. नो, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी. सो वी कैन नॉट लूज देम. Only if we communicate with them regularly, they'll stay with us. At the same time, there are a lot of competitors in the market who keeps on communicating with few possible customers, new customers. So we also need to go there and communicate, because we also need new customers. तो दोनों ही सिचुएशन में हमारे लिए कम्युनिकेशन का महत्व बहुत ज्यादा है, हमें वो करना ही पड़ेगा. अब चौथा एक इंपॉर्टेंट रीजन है जिसे हम कहते हैं ट्रेड यूनियन. ट्रेड यूनियन, you can understand, they are the parents of the employees. They are like the parents of the workers. हर एक कंपनी में दो ग्रुप्स होते हैं, जैसे मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज या फिर वर्कर्स. अब इनके बीच का जो रिलेशन है, दैट इज लाइक सास बहू का रिलेशन और टॉम एंड जेरी रिलेशन. मैनेजमेंट चाहता है कि कम पैसा देके वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल करे, ज्यादा काम हासिल करे, और एम्प्लॉय चाहते हैं कि कम काम करके ज्यादा पैसा कमाए. अब सीधी सी बात है, जब इन दोनों का ही गोल अपोजिट है, तो इनके बीच में अच्छा रिलेशन बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग, नामुमकिन नहीं है पर मुश्किल है. और किसी भी रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, नया रिलेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड टू कम्युनिकेट. अगर आप अपने पड़ोसी से बात नहीं कर रहे हो, या आपके पड़ोसी की आपके साथ अनबन है, तो क्या आपके बीच में कम्युनिकेशन होगा? नहीं. और मान लो ये अनबन को मिटाना है, तो क्या करना पड़ेगा? किसी ना किसी को आके बात करनी पड़ेगी. सो समवन हैज टू इनिशिएट कम्युनिकेशन, वेदर यू और योर नेबर. सी, कम्युनिकेशन इज द सीड that not only builds good relations, it also helps in maintaining good relations and growing them. कम्युनिकेशन ही ऐसी चीज है जो हमारे लोगों के साथ संबंध बनाने में, उन संबंधों को टिकाने में और उसको बढ़ाने में मदद करता है. सो a management, before making decision, has to win the confidence of the labor union. So there should be a regular communication between management and trade union. क्योंकि किसी भी कर्मचारी को कुछ भी दिक्कत हुआ तो लेबर यूनियन उसको सपोर्ट करेगा और मैनेजमेंट का काम मुश्किल हो जाएगा. So see, this is actually like a family. You can only live peacefully if all of you stay together peacefully, if all of you communicate and have good relations with each other. सिमिलरली कंपनी में भी लेबर यूनियन या ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए. और अभी जैसे मैंने बताया कि अच्छा रिलेशन कब पॉसिबल होगा? ओनली व्हेन यू कम्युनिकेट. सो कम्युनिकेशन करने से ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में अच्छा रिलेशन होता है, जिससे सभी लोगों को फायदा होता है और कंपनी की प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ बढ़ता रहता है. सो दैट्स व्हाई वी नीड टू हैव कम्युनिकेशन. नेक्स्ट रीजन इज human relations. See, लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमारे लोगों के साथ किस तरह के संबंध है. ह्यूमन रिलेशंस बिटवीन टू डिफरेंट पर्सन्स. To work in an organization, we need to have good relations with all other people, whether they belong to our department or not.
Not only people within the organization, we should also have good relations with people outside the organization. So right now we are talking about relations within the organization. So to have good relations, we need to understand that each human being has got certain needs, ambitions, expectations, and problems. We need to treat everyone as a human being and not a machine. So managers should also understand that people working in that team are the people, living human beings and not the robots. So they need to be human towards those members, towards those employees. They need to understand their needs, their expectations, and their problems as well. अगर मेरा बच्चा बीमार है and as a boss I don't prefer to go to office today, तो हो सकता है ना किसी एम्प्लॉय का बच्चा बीमार हो तो वो भी ऑफिस न आए. सो दूसरे दिन उसको झाड़ने की बजाय मुझे उससे पूछकर जानना चाहिए कि वो ऑफिस क्यों नहीं आया. एंड देन आई नीड टू एम्पैथाइज विथ हिम, आई नीड टू अलाउ हिम. क्योंकि प्रॉब्लम सभी के होता है ना. मैनेजर का भी प्रॉब्लम होता है तो सबऑर्डिनेट का भी प्रॉब्लम होता है. कंपनी के ओनर का प्रॉब्लम तो कंपनी में काम करने वाले छोटे वर्कर का भी प्रॉब्लम होता है. सो एक दूसरे को समझने के लिए दे नीड कम्युनिकेशन. ओनली कम्युनिकेशन बिल्ड्स stronger human relations and respect among the people, which ultimately leads to personal as well as professional success. Next important factor which has increased the importance of communication is public relations. What is public relations? Relations of a company with people outside. And who are the people outside the company? They are your customers, they are your suppliers, they are your vendors or distributors. And you also need to keep good relations with government concerns as well. You can only have good relations with them if you can convey a professional positive impression. And to convey a positive professional impression, you need to communicate with them on a regular basis. किसी भी कंपनी के अस्तित्व का आधार सिर्फ कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग नहीं होते. कंपनी के बाहर के काफी सारे लोग हैं जो भी बहुत ही महत्व रखते हैं. अब ये लोगों में कंपनी के कस्टमर्स हो सकते हैं, कंपनी के सप्लायर्स हो सकते हैं, कंपनी के फाइनेंशियर्स हो सकते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स या वेंडर्स हो सकते हैं, और काफी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं जिनके साथ कंपनी को अच्छा रिलेशन बनाना पड़ता है. और अभी हमने सीखा ना कि अच्छा रिलेशन कैसे बनता है, कम्युनिकेशन करने से. सो जिस तरह से कंपनी के अंदर के लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बनाती है, उसी तरह किसी भी कंपनी को, अन्य कंपनी के मैनेजमेंट को कंपनी के बाहर के लोगों के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाने पड़ते हैं. देन ओनली यू कैन हैव अ professional positive impression in the mind of people and the society and the country. Then only they will respect you, they will trust you, and they will buy your products or services. So these are the important factors which led to the increasing importance of communication. And on a personal level, there is one more factor. We call it personal asset. So what is a personal asset? If you are a good communicator, if you can convey your message in an effective, understandable manner, you will achieve your goal. And when you achieve your goal, you help your department achieve its goal. When your department achieves its goal, it helps the company achieve its goal. These all are things are connected. To become successful in job or business, you need to be a very good communicator. सबके घरों में आती है. Friends, लेकिन अगर इससे कोई बंदा अपने विचारों को, अपनी बात को अच्छी तरीके से सामने वाले को पेश कर सकता है ताकि सामने वाला उसको सही तरीके से समझ पाए, तभी जाके वो बंदा अपने कार्य में सफल हो सकता है. તમે કોઈ પણ કામ કરતા હો, તમે કોઈ પણ જોબ કરતા હો કે કોઈ પણ બિઝનેસ કરતા હો, જો તમે તમારી વાત સારી રીતે રજૂ કરતા તમને આવડતું હશે
એટલે કે જો તમને કમ્યુનિકેશન કરતા આવડતું હશે તો અને તો તમે ઝડપથી સફળ થશો. Company will promote you, company will pay you more money, company will make you leader. Your business will grow, expand and become the best in the country. So these all are the factors which have increased the importance of communication. I'll just repeat them quickly. Growth in the size of organization, छोटी कंपनी, कम एम्प्लॉइज, फिर बढ़ते बढ़ते बड़ी कंपनी हो गई, बहुत सारी ब्रांचेस हो गई, बहुत सारे एम्प्लॉइज हो गए. तो अभी सबके साथ अच्छी तरह से काम करने के लिए, कंपनी के गोल्स अचीव करने के लिए आपको रेगुलर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, रेगुलर इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना पड़ेगा, रेगुलर प्रॉब्लम एड्रेस करके सॉल्व करने पड़ेंगे. ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन, स्पेशलिस्ट का डिमांड है, कंपनी चाहती है कि हर एक काम के लिए स्पेशलिस्ट बंदा है. तो जब स्पेशलिस्ट लोग आपकी कंपनी में काम करते तो दो अलग अलग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. हर एक डिपार्टमेंट को मिलजुल के दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ काम करना है. तो कोऑर्डिनेशन के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए आपको कम्युनिकेशन चाहिए. कंपटीशन इतना बड़ा है कि आपको एग्जिस्टिंग और न्यू कस्टमर्स दोनों ही को मेंटेन करना है. कैसे मेंटेन करोगे? एक अच्छा इंप्रेशन बना के. अच्छा इंप्रेशन कैसे बनेगा? कम्युनिकेशन के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा. मैनेजमेंट और वर्कर्स में अच्छा रिलेशन बनाने के लिए ट्रेड यूनियंस को बीच में लाना पड़ेगा, उनके साथ कम्युनिकेशन अच्छा करना पड़ेगा ताकि मैनेजमेंट के अंदर जो वर्कर्स का भरोसा है वो मेंटेन हो. हर एक मैनेजर को अपने टीम के बारे में सोचना पड़ेगा, हर एक टीम मेंबर के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा. और अच्छा रिलेशन तभी बनेगा जब हम कम्युनिकेशन करेंगे. कंपनी के बाहर के लोगों के साथ भी हमें अच्छा रिलेशन बनाना है, एक पॉजिटिव इंप्रेशन बनाना है, कंपनी का एक रेपुटेशन मार्केट में क्रिएट करना है. कैसे होगा? कम्युनिकेशन से होगा. और फाइनली आप कोई भी काम करते हो, आप कोई भी प्रोफेशन में हो, कोई भी कंपनी में हो, आपका ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब आप अपनी बात को अच्छी तरीके से पेश कर पाए, which again calls for ability to communicate or having an excellent communication skills. Now we will learn about communication process and its components. As you can see in the diagram, these are the different components of communication process: sender, encoding, message, channel and medium, receiver, decoding, feedback and context. Now we'll learn about each of this component one by one. We'll begin with the very first component, that is sender. Communication process begins with the sender. Sender is the person who has some idea or information and he wants to convey that idea or information to somebody. If we talk about an organization, sender can be a colleague or a superior or a subordinate. Sender is also known as encoder, transmitter or source. सेंडर वो बंदा है जिससे कम्युनिकेशन प्रोसेस की शुरुआत होती है. सेंडर का दूसरा नाम है सोर्स या फिर एनकोडर या फिर ट्रांसमीटर. सेंडर वो बंदा है जिसके पास कोई आइडिया या इंफॉर्मेशन है और वो चाहता है कि ये आइडिया या इंफॉर्मेशन मैं किसी को दूं. अगर हम किसी कंपनी की बात करते हैं तो सेंडर कोई भी हो सकता है. आपके साथ काम करने वाला बंदा भी सेंडर हो सकता है, आपके ऊपर वाला बंदा माने आपका बॉस भी सेंडर हो सकता है, आपका टीम का कोई मेंबर, आपका कोई सबऑर्डिनेट भी सेंडर हो सकता है. सेंडर के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं एनकोडिंग. To encode means to convert in a code, to make a code. Encode का मतलब होता है कोड बनाना.
So the question is, why do we need to encode something? Let me give you a simple and funny example. मान लो आपके घर पे कोई मेहमान आए. अभी कोविड-19 के चलते तो कोई मेहमान आना भी मुश्किल है. ना तो हम किसी के घर पे जाते हैं, ना तो कोई हमारे घर पे आता है, और वो सेफ है. पर मान लो आप घर पे अकेले हो, आपके पेरेंट्स कहीं कुछ काम से बाहर निकले हैं, और दूर के कोई आपके रिलेटिव आ गए. अब सीधी सी बात है, घर पे अगर कोई रिलेटिव आता है तो हम उनको वेलकम करेंगे और उनसे हम कुछ लोगे ऐसा पूछेंगे, मतलब कुछ चाय पानी उनके बारे में पूछेंगे. तो मान लो आपने वो गलती कर दी, आपने गेस्ट से पूछ लिया कि आप कुछ लोगे क्या. अब गेस्ट ने बोला कि यार कुछ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छी बात है, कुछ गर्म हो तो अच्छी बात है. अब आप टेंशन में आ गए क्योंकि आपको तो खाना पकाना आता नहीं. घर में जो सूखा नाश्ता पड़े वो शायद गेस्ट को नहीं दे पाएंगे, और पेरेंट्स कब आएंगे, मम्मी डैडी कब आएंगे, पता नहीं. आप किचन में फिर भी जाते हो और ढूंढते हो, आपको मैगी मिलती है. ज्यादातर घरों में मैगी होती है. मैगी पकानी आपको बढ़िया आती है. थोड़ा हेजिटेशन होता है, पर आप जाके गेस्ट को पूछते कि और तो कुछ नहीं पर मैगी है, चलेगी? गेस्ट ने बोला बिल्कुल चलेगी. सो यू कम टू किचन अगेन. अब आप क्या करते हो, आप मैगी का पैक लेते हो, उसको खोलते हो, उसमें जो रॉ कच्ची मैगी होती है, केक बोलते हो उसको आप तोड़कर एक प्लेट में रखते हो. मैगी के पैकेट के अंदर एक सैशे आता है मसाले का, जिसे हम कहते हैं टेस्ट मेकर. आप उसको खोल के उसमें से मसाला निकालते हो. वो जो कच्ची मैगी अपने प्लेट में रखी उसके बाजू में वो मसाला रखते हो, और फिर एक फॉर्क रख के आप मेहमान को परोसते हो. ऐसा करोगे क्या? ये जो मैगी आपने अभी मेहमान को दी वो कच्ची मैगी, इट्स अ रॉ मैगी. सो द गेस्ट विल नॉट बी एबल टू ईट इट. और मान लो उन्होंने खाने की जरूरत की, खाने की हिम्मत की, तो वो खाना उनको हजम नहीं होगा, पेट में तकलीफ होगी. क्यों? क्योंकि वो कच्ची मैगी, इट्स अ रॉ मैगी, and the guest will not be able to eat it. And suppose if he dares to eat it, he will not be able to digest it. He may have a pain in the stomach afterwards. So what you need to do is you need to cook the Maggi. आपको मैगी को पकाना था. तो आप क्या करोगे, जब गेस्ट ने हामी भरी, गेस्ट ने बोला कि हाँ मैं मैगी खाऊंगा, आप इमीडिएटली किचन में जाओगे, मैगी ढूंढ के निकालोगे, उसका पैक ओपन करोगे, एक पतीली में पानी लेकर उसको गैस के ऊपर रखोगे, गैस चालू करोगे. जैसे ही थोड़ा पानी उबलता है उसमें वो मैगी की केक तोड़ के डालोगे. जैसे ही मैगी सॉफ्ट हो जाती है, बॉईल हो जाती है, फिर उसके अंदर वो टेस्ट मेकर माने वो मसाला डालोगे और फिर उसको स्टर करोगे. जैसे आपको लगता है कि मैगी ठीक से पक चुकी है, आप उसको प्लेट में ट्रांसफर करोगे और फॉर्क रख के आप गेस्ट को सर्व करोगे. क्या अभी ये मैगी गेस्ट खा पाएंगे? हाँ बिल्कुल, बिकॉज इट इज अ कुक्ड मैगी. फ्रेंड्स, we need to understand that there may be difference between sender and receiver in terms of age, occupation, knowledge and expertise and experience. सेंडर और रिसीवर के बीच में अंतर हो सकता है. ये अंतर उनके एजुकेशन से लेके हो सकता है, उनके एक्सपीरियंस से लेके हो सकता है, उनकी उम्र का हो सकता है, या फिर उनके नॉलेज का हो सकता है. So whatever idea or information sender has in his mind, if he presents it to the receiver in the same way, receiver may not be able to understand. तो ये जो अंतर की मैंने बात की सेंडर और रिसीवर के बीच में, अगर वो अंतर की वजह से सेंडर के पास जो कोई भी इंफॉर्मेशन या आइडिया है वो ऐसे का ऐसे ही अगर रिसीवर को दे देगा तो रिसीवर की समझ में कुछ नहीं आएगा. तो सेंडर को क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने कच्ची मैगी को प्रोसेस करके कुक करके खाने लायक मैगी में तब्दील की, वैसे ही सेंडर को अपने नॉलेज को माने अपने आइडिया और इंफॉर्मेशन को भी प्रोसेस करके कुक करके रिसीवर समझ पाए वो
स्वरूप में ढालना होगा, और ये प्रोसेस को हम कहते हैं एनकोडिंग. So encoding is actually the process of converting your raw idea or information into a meaningful message. What is meaningful? Meaningful means which receiver can easily understand. So meaningful is understandable message. So when sender converts his idea or information into an understandable message, that is called encoding process. Encoding is a very important component of communication process because communication सक्सेसफुल होगा या फ्लॉप शो होगा वो एनकोडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर एनकोडिंग सही हुआ तो मैसेज अंडरस्टैंडेबल होगा, रिसीवर उसको समझ पाएगा और वो सेंडर को रिप्लाई कर पाएगा. अगर आपने ठीक से एनकोडिंग नहीं किया तो हो सकता है कि मैसेज आप जो इंफॉर्मेशन भेजो वो रिसीवर न समझ पाए, तो आपका कम्युनिकेशन पूरा फेल हो जाएगा. So encoding is a very important process in communication. Now where does this encoding happen? Encoding कहाँ पे होता है? Encoding happens here in the mind of the sender. Encoding sender के दिमाग में होने वाली प्रोसेस है. Sometimes it happens automatically and many a times you need to do it consciously. Encoding के बाद you can see in the diagram there is a term called message. So what is a message? We have just discussed that when you encode your raw idea. दोस्तों हम लोग सब अपने फ्यूचर की बात करते हैं, message, पर आपने कभी रियलाइज किया है? final product of Hey everyone. process. So you can say that Then message go to around is 10 encoded second forward idea or and- encoded information. Message is something that receiver can understand. Receiver cannot understand your raw idea or information, but when you have cooked, when you have processed, when you have encoded your idea or information, now it has become a message. And a message is something which your receiver can easily understand. Before teaching a class of students, a teacher thinks about his target receiver. He thinks कि मुझे आज जो टॉपिक पढ़ाना है वो मैं कैसे पढ़ाऊं. तो कैसे पढ़ा वो समझने के लिए उसको पहले सोचना होगा कि मुझे ये टॉपिक किन को पढ़ाना है. Who are my target receivers? This is something which is called audience analysis. So encoding actually involves number one, audience analysis and then converting idea into message. So sender has to think about his target receiver, their language preference, their comfort level, their attitude towards the sender as well as the topic, their needs, their expectations, their knowledge level, the goal of the sender, and then only he has to encode idea into message. Audience analysis में सेंडर को रिसीवर के बारे में काफी सारी चीजों का पता करना पड़ेगा. जैसे मेरे रिसीवर कितने हैं, एक या एक से ज्यादा, इसमें लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं, इनका एवरेज एजुकेशन लेवल क्या है, इनका एवरेज एज क्या है, ये लोग क्या करते हैं, मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो टॉपिक के बारे में इनको कितना पता होगा, मुझे लेकर या मेरे टॉपिक को लेकर इनका एटीट्यूड क्या होगा. ये सारा प्लानिंग करने के बाद मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं इनको ये टॉपिक अगर सही मायने में पढ़ाना चाहता हूं तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा. वो पूरा प्लानिंग जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ एनकोडिंग प्रोसेस. नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट मैसेज. मैसेज कैन बी वर्बल, नॉन वर्बल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. से फॉर एग्जांपल, while teaching a group of students, I may tell a particular student, please stand up. So this is a verbal message because यहाँ पे मैंने शब्दों का इस्तेमाल किया, मैंने बोलकर मैसेज दिया है और बोलने के टाइम पे मैंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया. So this is a verbal message. I may also convey my message in this way.
दिस इज कॉल्ड अ नॉन वर्बल मैसेज बिकॉज आई डिड नॉट यूज एनी वर्ड्स. एक भी शब्द का इस्तेमाल करके सिर्फ इशारों से मैंने बंदे को बोला खड़े होने के लिए. And now you see, please stand up. This was a combination of words and gestures. So this is a combination of verbal and a non-verbal message. So आप जो मैसेज भेजते हो वो वर्बल हो सकता है, वो नॉन वर्बल हो सकता है, और आइडियली इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज. योर मैसेज मे इंक्लूड डायग्राम्स, photographs, charts and graphs depending upon your encoding process. आपके मैसेज में हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा हो सकती है, या फिर सिर्फ हिंदी या सिर्फ इंग्लिश भी हो सकता है. ये एनकोडिंग के टाइम पर आपको डिसाइड करना होगा. सो मैसेज इज समथिंग दैट यू एक्चुअली सेंड और ट्रांसमिट टू द अदर पर्सन. And message is an idea or information which is encoded and which can be understood by the target receiver. मैसेज के नीचे आपको दो और चीजें दिखने को मिलेगी, चैनल एंड मीडियम. व्हाट इज अ चैनल, व्हाट इज अ मीडियम? सी मैसेज तो हमारे एनकोडिंग के बाद रेडी हो गया, अब हमें वो मैसेज को ट्रांसमिट करना है, माने कि वो मैसेज को हमें रिसीवर को भेजना है. सो हाउ डू वी डू दैट? मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता है जिन्हें हम कहेंगे चैनल एंड मीडियम. सो व्हाट इज अ चैनल एंड व्हाट इज अ मीडियम? चैनल, यू कैन से इट्स अ पाथ, इट्स अ वे, इट्स अ रूट, इट्स अ रोड which takes your message to the receiver. And medium is the vehicle which will carry your message. Channel is how you express your message. You can do it verbally or non-verbally or with a combination. And medium can be anything. For example, if I post an instruction on the WhatsApp group of our students, here I have used a written channel क्योंकि मैंने मैसेज को टाइप करके माने लिख के भेजा. सो किस तरीके से भेजा? लिख कर भेजा. सो रिटन चैनल या फिर वर्बल चैनल बिकॉज आई हैव यूज वर्ड्स. और ये मैसेज बच्चों तक पहुंचाने के लिए मैंने किस चीज का इस्तेमाल किया? आई यूज माई एंड्रॉइड फोन. So Android phone is an example of a medium. So sender can transmit his message with the help of two things, a path and a medium, a vehicle. Path or way of expression is called channel, which can be verbal or non-verbal or combination. And medium is a tool, it's a device, it's a vehicle through which you send your message. Channel and medium के बाद if you refer to the diagram, now comes the receiver. Receiver is the person who receives your message. So right now I am teaching to a group of CS aspirants, CS students. So I am the sender and you are the receivers. So receiver can be one or more. If we talk about a business organization, a company, आपका रिसीवर आपका कुलीग हो सकता है, आपके सुपीरियर हो सकते हैं, या फिर आपके सबऑर्डिनेट भी हो सकते हैं. Anybody can be your receiver. Your receiver can be within your company or he or she can be outside your company. वो कंपनी के अंदर का बंदा भी हो सकता है, कंपनी के बाहर का बंदा भी हो सकता है. In communication process, receiver plays 3 roles. कम्युनिकेशन में रिसीवर के 3 काम है. सबसे पहला काम है टू रिसीव द मैसेज, मैसेज को रिसीव करना, मैसेज को प्राप्त करना. इसके बाद का जो काम है वो थोड़ा जिम्मेदारी वाला काम है. जैसे आपने देखा ना, सेंडर एक काम करता था जिसको हम कहते थे एनकोडिंग. रिसीवर जो काम करेगा उसको हम कहेंगे डीकोडिंग. डीकोडिंग के बारे में हम कुछ ही देर के बाद बात करते हैं. तो रिसीवर का पहला काम है रिसीव करना. दूसरा काम है जो मैसेज को रिसीव किया वो मैसेज का डीकोडिंग करना, मतलब वो मैसेज को समझना. और उसके बाद तीसरा काम है सेंडर के मैसेज का जवाब देना, जिसे हम कहते हैं फीडबैक देना.
So receiver plays three important roles in communication process. Number one, to receive the message. Number two, to decode the message, that means to understand the message. And number three, to send the feedback to the sender. अब रिसीवर के बाद जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, उसे हम कहते हैं डीकोडिंग. टू डीकोड मीन्स टू ब्रेक द कोड. डीकोड का मतलब है कोड को तोड़ना. When the receiver receives message, he breaks it. Breaks it माने he tries to understand. What does he try to understand? He tries to understand the original idea or information which the sender wanted to convey. सेंडर मैसेज थोड़ी ना भेजना चाहता था, सेंडर तो अपना आइडिया या इंफॉर्मेशन भेजना चाहता था, पर क्योंकि रिसीवर को वो समझ में नहीं आता, इसलिए सेंडर ने क्या किया कि आइडिया या इंफॉर्मेशन को मैसेज में कन्वर्ट किया, जिसको हम एनकोडिंग कहते थे. अब रिसीवर को क्या मिलने वाला है? रिसीवर को तो मैसेज मिलेगा, पर उसको क्या समझना है? मैसेज के अंदर जो ओरिजिनल आइडिया या इंफॉर्मेशन था, ही हैज टू अंडरस्टैंड दैट. So he tries to understand कि sender मुझे क्या कहना चाहता था, and that process is known as decoding. Decoding is also a very important process in communication because decoding actually decides कि sender ने जो मैसेज भेजा, रिसीवर उसको समझ पाया या नहीं, रिसीवर उसको सही मायने में समझ पाया या नहीं. So decoding depends upon the knowledge and experience of the receiver. हो सकता है कि रिसीवर वो ही समझे जो सेंडर उसको समझाना चाहता था, हो सकता है रिसीवर कुछ और समझे, ये भी हो सकता है कि रिसीवर को कुछ समझ में ना आए. अब डीकोडिंग के बाद रिसीवर को कुछ समझ में आएगा कि सेंडर मुझे क्या कहना चाहता है. जो कुछ भी उसको समझ में आया या नहीं आया, उसके बिना पर अब वो सेंडर को रिप्लाई भेजेगा, जिसे हम कहेंगे फीडबैक. सो द नेक्स्ट कंपोनेंट इज फीडबैक. फ्रेंड्स, इफ आई टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, इट इज नन अदर देन फीडबैक. फीडबैक इज कंसिडर द बैकबोन ऑफ कम्युनिकेशन. बैकबोन माने रीढ़ की हड्डी. तो कम्युनिकेशन प्रोसेस इज इनकम्प्लीट विदाउट फीडबैक. अब हम फीडबैक को इतना महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि फीडबैक इज द ओनली थिंग दैट टेल्स द सेंडर वेदर हीज मैसेज वाज अंडरस्टूड बाय रिसीवर और नॉट. फीडबैक इज द ओनली टूल दैट टेल्स द सेंडर वेदर रिसीवर हैज अंडरस्टूड हिज मैसेज इन द राइट सेंस और नॉट. फीडबैक ही वो चीज है जो सेंडर को बताती है कि रिसीवर ने उसके मैसेज को समझा या नहीं. फीडबैक ही वो एकमात्र चीज है जो सेंडर को बताती है कि रिसीवर ने सेंडर के मैसेज को सही अर्थ में समझा या नहीं. सो अकॉर्डिंगली सेंडर कैन डिसाइड, शुड आई मेक अ चेंज इन माय मैसेज और व्हाट, शुड आई सेंड द नेक्स्ट मैसेज. Feedback is a very important element of communication process. Feedback can be verbal or non-verbal or a combination of both. So for example, आपको कुछ पढ़ाने के बाद मैंने आपसे पूछा कि बेटा समझ में आया, हो सकता है आप आंसर दोगे हाँ, सो ये वर्बल फीडबैक हुआ. हो सकता है कि आप आंसर ना दो, आप सिर्फ अपनी मुंडी हिलाओ, यू जस्ट नोड योर हेड, सो दिस इंडिकेट्स यस, हाँ. इट इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. हो सकता है कि जब मैंने आपको पूछा कि बेटा समझ में आया, तो आप मुझे ऐसे रिप्लाई करोगे हाँ सर. सो दिस वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल बोथ. अब जो आखिरी कंपोनेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, उसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट माने क्या? फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन डज नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम. There is some context. Context means STP. S माने सिचुएशन, हालात, परिस्थिति. T माने टाइम, वक्त, समय. P माने प्लेस, जगह, जगह. So when you say context, it means a combination of situation, place and time.
जब भी किसी दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो वो कम्युनिकेशन होने से पहले कुछ हुआ होगा। वो जो हालात, वो जो सिचुएशन थी जिसने कम्युनिकेशन किया, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन हुआ, इट कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी अ जॉब इंटरव्यू, इट कैन बी एन एक्सीडेंट, इट कैन बी एनीथिंग। सो दैट इज नोन एज सिचुएशन। कम्युनिकेशन कोई जगह पे हुआ तो वो जगह को हम कहेंगे प्लेस। कम्युनिकेशन कोई वक्त पर हुआ तो वो वक्त को हम कहेंगे टाइम। सो फार हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस के इतने कंपोनेंट के बारे में बात की। वी स्टार्टेड विथ सेंडर, माने वो बंदा जो कम्युनिकेशन शुरू करता है, वो बंदा जिसके पास कोई आइडिया और इंफॉर्मेशन है और वो चाहता है कि वो किसी को वो आइडिया या इंफॉर्मेशन दे। उसके बाद हमने बात की एंड कोडिंग की। दिक्कत यह है, प्रॉब्लम यह है, चैलेंज ये है कि सेंडर के पास जो आइडिया या इंफॉर्मेशन है वो रॉ फॉर्म में, वो कच्चा है, सिर्फ सेंडर उसको समझ सकता है। और अगर वैसे का वैसे ही उसने सामने वाले को दे दिया तो सामने वाले की समझ में कुछ नहीं आएगा। कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में मेरे पास जो नॉलेज या इंफॉर्मेशन है मैं उसको ऐसे ही आपको बता दूंगा तो शायद आप समझ नहीं पाओगे। तो सेंडर को क्या करना पड़ेगा? सेंडर को अपने आइडिया या इंफॉर्मेशन को कुक करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, उसको इजी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं एनकोडिंग। आपको कुछ भी पढ़ाने से पहले मुझे थोड़ा सा प्लानिंग करना पड़ेगा कि मुझे किसको पढ़ाना है, वो कौन बंदा है, थोड़ा सा ऑडियंस एनालिसिस करना पड़ेगा, उसको कौन सी भाषा समझ में आती है, उसको मैं कैसे पढ़ाऊंगा, उसको सीधा बता दूंगा तो पता चलेगा या उसको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, उसको ऐसे ही बता डिस्क्राइब करूंगा तो समझ में आएगा या मुझे उसको एक डायग्राम भी दिखाना पड़ेगा। ये सारा प्लानिंग करने के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये जो प्लानिंग मैंने किया, जो सोचा आपके बारे में कैसे पढ़ाना है, उसे हम कहेंगे एनकोडिंग। एनकोडिंग के बाद क्या होता है ना कि हमारा जो आइडिया या इंफॉर्मेशन जो हमारे दिमाग में था, हमारे सेंडर के दिमाग में, उसका कन्वर्जन हो जाएगा मैसेज के अंदर, जो कि हम रिसीवर को भेजेंगे। तो अब आएगा भेजने की प्रोसेस, जिसे हम कहेंगे ट्रांसमिशन। उससे पहले हम बात करेंगे मैसेज की। मैसेज क्या है? मैसेज वो एनकोडिंग प्रोसेस का रिजल्ट है। सेंडर ने अपने आइडिया को मैसेज में कन्वर्ट किया, तो मैसेज में जब उसने कन्वर्ट किया तो हो सकता है कि वो मैसेज के अंदर उसने काफी सारा एडिशन किया, उसमें उसने कुछ सिंबल्स डाले, उसमें उसने कुछ एग्जांपल्स डाले, उसमें उसने कुछ फोटोग्राफ्स डाले, उसमें उसने कुछ डायग्राम्स डाले, और ये सब खिचड़ी बना के उसने एक मैसेज बनाया। तो मैसेज कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब ये मैसेज को रिसीवर को भेजना है, कैसे भेजेंगे? हमको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, और ये दो चीज ट्रांसमिशन करेंगे मैसेज का। कहां से कहां तक? सेंडर से लेके रिसीवर तक। ये दो एलिमेंट का नाम है चैनल एंड मीडियम। एकदम आसान भाषा में मैंने बताया कि चैनल वो रास्ता है जो आपके मैसेज को रिसीवर के घर तक पहुंचाएगा, और जिस वाहन के अंदर, जिस कार के अंदर या जिस बाइक के ऊपर आप अपना मैसेज रख के भेजोगे, वो वाहन को, वो व्हीकल को हम कहेंगे मीडियम। चैनल वर्बल हो सकती है, नॉन वर्बल हो सकती है। मीडियम आपकी आवाज हो सकती है, मीडियम आपका फोन हो सकता है, मीडियम टेलीविजन हो सकता है, मीडियम इंटरनेट हो सकता है, मीडियम ईमेल हो सकता है, मीडियम में लैपटॉप हो सकता है, मीडियम वो कैमरा हो सकता है। अब चैनल और मीडियम का यूज करके सेंडर ने क्या किया? मैसेज को रिसीवर तक भेजा। अब रिसीवर कौन है? तो रिसीवर वो बंदा जिसको आप वो आइडिया देना चाहते थे, इंफॉर्मेशन देना चाहते थे। रिसीवर एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर मैं किसी एक बंदे के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूं तो मेरा रिसीवर एक हुआ। जब मैं पूरे क्लास को पढ़ा रहा हूं तो मेरे रिसीवर एक से ज्यादा हुए। रिसीवर तीन काम करता है। रिसीवर का सबसे पहला काम है मैसेज को रिसीव करना। रिसीवर का दूसरा काम है मैसेज के अंदर छिपे हुए ओरिजिनल आइडिया या इंफॉर्मेशन को समझना, जिसे हम कहते हैं डीकोडिंग। और रिसीवर का तीसरा काम है कि सेंडर को जवाब देना, जिसे हम कहते हैं फीडबैक। अगर आप किसी कंपनी की बात करें तो आपका कुलीग, आपके सुपीरियर या सबऑर्डिनेट में से कोई भी आपका रिसीवर हो सकता है।
और उसको ध्यान में रख के आपको एनकोडिंग करना होगा एज ए सेंडर। रिसीवर के बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट था डी कोडिंग। डी कोडिंग में रिसीवर क्या करेगा, सेंडर ने जो मैसेज भेजा उसके पीछे उसका जो ओरिजिनल आइडिया या इंफॉर्मेशन था वो समझने का प्रयत्न करेगा। अब ये स्टेज पे रिसीवर का नॉलेज और एक्सपीरियंस उसको हेल्प करेगा। हो सकता है कि वो सेंडर के मैसेज को 100% माने पूरे तौर पे समझ पाए, हो सकता है उसको सिर्फ 80% समझ में आए, हो सकता है उसको सिर्फ 50 या 30% मैसेज समझ में आए। तो जो कुछ भी उसके समझ में आए या नहीं है उसके बिना पर वो सेंडर को रिप्लाई करेगा। वो रिप्लाई वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, और ये रिप्लाई को हम कहेंगे फीडबैक। अब जिस वक्त जो जगह जो हालत में सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन होता है उसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, this was the end of components of communication process. Now communication is actually a process that has got a number of sub processes. Communication एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें काफी सारी छोटी छोटी सब प्रोसेसेस है। ये सब प्रोसेसेस के बारे में हम जानेंगे। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में हमने बात की। अब हम कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और उसमें भी कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर जो छोटी छोटी प्रोसेसेस होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो सबसे पहली प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं आइडिएटिंग। आइडिएटिंग माने आइडिया आना, दिमाग में सोच आना कि मेरे पास कोई आइडिया है या मेरे पास कोई नॉलेज है या मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है जिसे मैं किसी को दे सकूं, वो सोच दिमाग में आना उसे हम कहेंगे आइडिएटिंग। फ्रेंड्स, ये आइडिएटिंग कौन करेगा? ये आइडिएटिंग करेगा सेंडर। आइडिएटिंग होने के बाद सेंडर ऐसे ही अपने आइडिया को भेज नहीं पाएगा, क्योंकि सेंडर को पता है कि उसके पास जो आइडिया है, उसके पास जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, वो सामने वाला माने कि रिसीवर ऐसे ही समझ नहीं पाएगा। तो अब उसको एक स्पेसिफिक प्रोसेस करनी पड़ेगी जिसको हम कहेंगे एनकोडिंग। एनकोडिंग के अंदर सेंडर दो चीज करेगा। सबसे पहले तो वो व्यक्ति के बारे में सोचेगा जिसको वो अपना आइडिया देना चाहता है, माने वो रिसीवर के बारे में सोचेगा। मेरा रिसीवर कौन है, मेरे रिसीवर कितने हैं, वो लड़का है या लड़की, वो पढ़ता है मतलब स्टूडेंट है या वो कॉलेज में है, वो जॉब करता है, वो बिजनेस करता है। अगर वो जॉब करता है तो कौन सी कंपनी में है, कौन से डिपार्टमेंट में, उसका रोल क्या है। अगर वो बिजनेस करता है तो किस चीज का बिजनेस करता है, वो खुद क्या कर रहा है, उसका नॉलेज लेवल क्या होगा, उसने कहाँ तक पढ़ाई की है, उसको कौन सी भाषा समझ में आती होगी, उसको कौन सी भाषा में समझाना जरूरी है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, मैं जो चीज के बारे में उसको बताना चाहता हूं उसका नॉलेज उसके पास कितना है, मेरे प्रति उसके विचार क्या है, ये टॉपिक के बारे में उसके विचार, एटीट्यूड क्या होगा। ये सारी सोच माने ऑडियंस एनालिसिस वो करेगा। उसके बाद वो प्लानिंग करेगा कि मैं किस भाषा में किन चीजों की मदद के द्वारा अपने आइडिया को सामने वाले को भेजूं। वो जो कुछ भी कॉम्बिनेशन करेगा, वो एग्जाम्पल लेगा, वो एक्सपीरियंस अपना शेयर करेगा, वो कोई स्टोरी ऐड करेगा, मतलब जो कोई भी मसाला वो डालेगा, वो पिक्चर डालेगा, कुछ भी वो सब मिला के वो अपने आइडिया को एक मैसेज के रूप में कन्वर्ट करेगा। तो ये सारा जो प्रोसेस हुआ इसे हम कहेंगे एनकोडिंग। अब एनकोडिंग के बाद कम्युनिकेशन की तीसरी सब प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन माने सेंडर के द्वारा अपने मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाना। और यहां पे सेंडर दो चीजों का हेल्प लेगा जिसे हम कहते हैं चैनल और मीडियम। ट्रांसमिशन के बाद इमीडिएट जो प्रोसेस रिसीवर करेगा उसे हम कहते हैं रिसीविंग, मैसेज को रिसीव करना। रिसीविंग करने के बाद रिसीवर सेंडर के मैसेज को समझने का कोशिश करेगा। वो ये समझने का कोशिश करेगा कि सेंडर मुझे एक्चुअली कहना क्या चाहता है। तो इसे हम कहेंगे डी कोडिंग। और डी कोडिंग के बाद जो कुछ भी रिसीवर समझा या न समझा उसके बिना पर वो सेंडर को जवाब भेजेगा जिसे हम कहेंगे फीडबैक। तो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन इज अ comprehensive process which has got 6
sub processes such as ideating, encoding, transmission, receiving, decoding एंड फीडबैक। इसमें से सेंडर 3 प्रोसेसेस करेगा, सेंडर 3 काम करेगा, आइडिएटिंग का काम करेगा, ऑडियंस एनालिसिस के साथ एनकोडिंग का काम भी वो करेगा, और चैनल और मीडियम के द्वारा मैसेज को ट्रांसमिट करने का काम भी सेंडर ही करेगा। रिसीवर भी 3 काम करेंगे। रिसीवर का पहला काम होगा मैसेज को रिसीव करना, दूसरा काम होगा डीकोडिंग करना, माने मैसेज में सेंडर क्या कहने की कोशिश कर रहा था उसको समझने का, और उसके बाद सेंडर के मैसेज का जवाब देने का, रिप्लाई भेजने का, माने फीडबैक देने का। तो पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस में 6 छोटी छोटी प्रोसेसेस है, जिसमें से पहली 3 प्रोसेस सेंडर करता है और बाकी की 3 प्रोसेस रिसीवर करता है। पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस में 3 एलिमेंट है, 3 कंपोनेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एनकोडिंग जो कि सेंडर करेगा, डीकोडिंग जो कि रिसीवर करेगा, और फीडबैक जो भी रिसीवर का काम है। पर फीडबैक वो चीज है जिसके बिना पर सेंडर को पता चलता है कि उसने जो भी भेजा, उसने जो भी कहा, उसने जो भी मैसेज भेजा वो रिसीवर को समझ में आया या नहीं, और कितना प्रतिशत रिसीवर समझा। रिसीवर 100% समझा, वो 50% समझा, वो 10% समझा, और इसके बिना पर सेंडर को यह पता चलेगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मान लो मैंने कोई छोटी सी चीज किसी को पढ़ाई, अब मैं उसको एक क्वेश्चन करूंगा। अब मेरे क्वेश्चन का सामने वाला जो आंसर देता है वो आंसर पर से मुझे पता चलेगा कि मैंने जो भी चीज पढ़ाई वो उसके पल्ले पड़े या नहीं, वो उसके दिमाग में गई या नहीं, और अगर मान लो उसके दिमाग में वो चीज गई तो कितनी गई। मैंने जो पढ़ा उसमें से वो कितना समझा, 100% समझा, 100% परफेक्ट, 50% समझा, 30% समझा, 10% समझा, 5% समझा, कुछ भी नहीं समझा। ये पता कहां से चलेगा? तो वो स्टूडेंट मेरे क्वेश्चन का जो जवाब देगा वो जवाब पर से मुझे पता चलेगा। तो मैंने जो पढ़ाया वो मैसेज हुआ, स्टूडेंट ने जो आंसर दिया वो क्या हुआ, वो फीडबैक हुआ। तो फीडबैक पर से मुझे पता चलेगा कि क्या ये टॉपिक सामने वाला समझा, सही मायने में समझा, और क्या मुझे उसे ये टॉपिक वापस पढ़ाना चाहिए, किसी और तरीके से पढ़ाना चाहिए, और आसान भाषा में पढ़ाना चाहिए। ये पूरा गाइडेंस मुझे फीडबैक पर से मिलेगा। अब हम एक एग्जांपल लेंगे ये सारी सब प्रोसेसेस को समझने के लिए। Let's take an example of a company where there is a manager and he notices that there is an employee who always comes late. कंपनी में शिफ्ट का टाइम है सुबह में 8 बजे का। मैनेजर ने नोटिस किया कि एक कर्मचारी है, एक बंदा है जो हमेशा 8 बजे के बाद ही आता है। So manager calls that employee in his office and talks with him. After the talk is over, employee says sorry and promises the manager that I will come on time from tomorrow onwards. So this is an example of communication process. Now let us understand different elements: sender, receiver, message, channel, feedback, medium, context. And let us also understand इसमें से ideating क्या है, इसमें encoding क्या है, इसमें transmission क्या है, इसमें decoding कहाँ पे है, receiving कहाँ पे है, और feedback क्या है। So, सबसे पहले तो ये प्रोसेस में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे सेंडर कौन था, रिसीवर कौन था। तो मैनेजर ने एम्प्लॉय को अपनी ऑफिस में बुलाया, तो मैनेजर हुआ सेंडर। मैनेजर ने बातचीत की शुरुआत की, माने मैनेजर वो सेंडर। एम्प्लॉय था रिसीवर। मैनेजर ने कैसे बात किया? ओरली बात किया, उसने बोलकर बात किया ना। तो उसने जो मैसेज दिया माने उसने समझाने का कोशिश किया, उसने क्वेश्चन पूछे होंगे, वो सारा हुआ मैसेज। रिसीवर ने उसको सॉरी बोला और प्रॉमिस किया कि मैं कल से टाइम पर आऊंगा, तो ये हो गया फीडबैक। अब चैनल कौन सी यूज की? बोल के कम्युनिकेशन किया, सो ओरल चैनल जो कि एक वर्बल चैनल उसका उपयोग किया। और कौन सा मीडियम यूज किया? वॉइस। कॉन्टेक्स्ट क्या था? तो बोला सिचुएशन,
तो मैनेजर ने देखा कि एम्प्लॉय रोज लेट आता है, वो सिचुएशन था। प्लेस क्या था? कंपनी। कहां पे कम्युनिकेशन हुआ? मैनेजर की केबिन में, मैनेजर की ऑफिस में। और टाइम क्या था? टाइम कुछ भी हो सकता है, सुबह हो सकती है, दोपहर हो सकती है, शाम हो सकती है। अब हम ये पूरे प्रोसेस को कम्युनिकेशन की सब प्रोसेसेस के बिना पर समझने का कोशिश करेंगे। आइए हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे हुआ। सबसे पहले बात होगी आइडिएटिंग के बारे में। आइडिएटिंग में क्या होती है? मैनेजर ने देखा कि इतने सारे कर्मचारी में से एक कर्मचारी है who regularly comes late. So that was an issue of punctuality. So the moment the manager saw that there is an employee who habitually comes late every day, he got an idea. He thought, let me teach him the importance of punctuality. Let me explain him why he should come on time. So this is an ideating process. मैनेजर को दिमाग में आइडिया आया कि मैं इससे बात करूं। So ideating, manager thinks to teach the employee the importance of coming on time, the importance of punctuality. मैनेजर के दिमाग में, उसके जहन में ये आइडिया का क्लिक होना कि ये बंदा लेट आता है, चलो मैं उससे बात करता हूं, चलो मैं उसको समझाता हूं, चलो मैं उसको सिखाता हूं कि टाइम पर आना चाहिए। ये दिमाग में सोच आई, दैट इज कॉल्ड आइडिएटिंग। अब एनकोडिंग क्या हुआ? तो आइए देखते हैं एनकोडिंग। मैनेजर ने नोट किया कि ये एम्प्लॉय लेट आता है, मैं उससे बात करूंगा। इसके बाद मैनेजर प्लान करता है कि ये एम्प्लॉय कौन है, वो कौन से लेवल पे काम करता है, कौन से डिपार्टमेंट में, कौन सी पोस्ट है उसकी, वो क्या, उसका जॉब प्रोफाइल क्या है, ये सब उसने पता किया। उसने सोचा कि कितना पढ़ा लिखा होगा, कितने साल से कंपनी में काम कर रहा है, उसका फीडबैक क्या मिला है उसको, वो भी वो देखेगा। उसका एवरेज एज क्या होगा, वो भी वो सोचेगा। उसका एजुकेशन लेवल भी देखेगा। उसको कौन सी भाषा समझ में आती है, वो भी वो सोचेगा। वो ये भी सोचेगा कि मैं उसको किस तरह से समझाऊं, क्या मैं उसको उस पर गुस्सा हो जाऊं, क्या मैं उसको अच्छी तरह से समझाऊं, उसको रिस्पेक्ट देके समझाऊं, क्या मैं उसकी वो जहां पे जो वर्क स्टेशन पे काम करती है उसके डिपार्टमेंट में जाके समझाऊं, या फिर मैं उसको यहां पे बुला के समझाऊं, क्या मैं डायरेक्टली उससे बात करूं या मैं किसी के द्वारा उसको समझाऊं, मैं उसके बॉस को बात करूं और उसके बॉस के द्वारा उसको समझाऊं। ये सारा प्लानिंग मैनेजर ने किया, जिसको हम कहेंगे एनकोडिंग। सो मैनेजर नाउ प्लान्स हाउ टू कम्युनिकेट importance of punctuality, coming on time to that employee. And then he finally decides to call the employee to his office. फिर उसने सोचा कि नहीं, उसको यहीं पे बुलाता हूं, उसके साथ चाय के टाइम पे बुलाऊंगा, उस साथ में चाय पियेंगे और चाय पीते पीते मैं उसके साथ अच्छी तरीके से बात करूंगा। एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ जैसे बात करते मैं वैसे उसके साथ बात करूंगा। मैं उस पर गुस्सा नहीं करूंगा, मैं उसको डांटूंगा नहीं, ठीक है। मैं अच्छी तरह से उससे बात करके जानने का कोशिश करूंगा कि वो लेट क्यों आता है। He also decides to have a face-to-face communication and then into the language which employee could understand. कि वो जो भाषा समझता है, उसको गुजराती आती है तो मैं उससे गुजराती में बात करूंगा, फेस टू फेस कम्युनिकेशन करूंगा, वाया मैसेज नहीं भेजूंगा। तो उसने वो बंदे को चाय के लिए इनवाइट किया कि भैया आज चाय साथ में पियेंगे, तुम आओ। वो बंदा आता है, ट्रांसमिशन किया मैसेज। कैसे ट्रांसमिट किया? उसने बुलाया, जब एम्प्लॉई आए साथ में चाय पीना शुरू किया, मैनेजर ने बात करनी शुरू की। सो ही ट्रांसमिटेड हिज मैसेज फेस टू फेस, आमने सामने बैठकर, और कहां पे? अपनी ऑफिस में। सो दैट वाज द ट्रांसमिशन। कौन सी चैनल यूज की? ओरल चैनल, वर्बल चैनल, बोलकर उसने बात किया। और कौन से टूल का, मीडियम का यूज किया? अपने आवाज का इस्तेमाल किया। रिसीविंग क्या हुआ यहाँ पे? एम्प्लॉय ने सुना कि मैनेजर क्या कह रहा है, दैट वाज रिसीविंग। उसके बाद एम्प्लॉय ने डिकोडिंग किया। डिकोडिंग में क्या हुआ? एम्प्लॉय ट्राइज टू अंडरस्टैंड द पर्पस एंड फीलिंग्स ऑफ मैनेजर बिहाइंड हिज मैसेज। एम्प्लॉय ने सोचा कि ये भाई साहब ने मेरे को ही क्यों बुलाया, और उसके साथ उसने सोचा, जो कुछ भी मैनेजर ने उसे कहा उसके बारे में उसने सोचा, उसको समझ में आया कि मैनेजर का पर्पस क्या था।
उसको ये भी समझ में है कि मैनेजर मेरे लिए मेरा दोस्त जैसा है, वो मेरे बारे में अच्छा सोचता है, वो चाहता है कि ये बंदा इंप्रूव करे, वो चाहता है कि ये बंदा यहाँ पे न पड़ा रहे, वो चाहता है कि बंदे का ग्रोथ हो। इसलिए एक अच्छे तरीके से उसने मुझे समझाने का कोशिश किया कि मुझे लेट नहीं आना चाहिए। वो समझ गया, उसको अपनी गलती रियलाइज हुई, उसको अपनी गलती समझ में आई। ये सारा था डीकोडिंग। अब फीडबैक क्या हुआ? फीडबैक में ही अपोलोजाइजेस टू द मैनेजर, उसने मैनेजर को सॉरी बोला एंड ही प्रोमिसेस दैट ही वुड कम इन टाइम फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, और उसने प्रॉमिस किया कि कल से मैं टाइम पर आऊंगा। सो फ्रेंड्स, today we'll conclude the session here. We'll soon meet with a new session, a new topic very soon. Till then, take very good care of yourself. Thank you. Enjoy the day.